Sahab, I am a psychiatrist. I am under your training, and you have to teach me how to read MRI. So I will ask you some questions related to MRI, and you have to respond to it. Number ठीक one. है. First of all, Dr. Sahab, would you like to tell me now? These stations are because they are related to psychiatrists, so you have to talk in English. No need to talk in Urdu because assessment आप नहीं कर रहे, आप teach कर रहे हैं. So आप जी English में ही बात करें जैसे examiner के सामने आपने बात करनी है. So the first जी. question I would like to ask Dr. Saira, what is the significance of MRI in psychiatry? Okay. Sir, MRI is Don't magnetic say sir. resonance. मैं कैंडिडेट हूं तुम्हारा, मुझे वो बताओ, पढ़ाओ. Okay. हाँ. MRI stands for magnetic resonance imaging technique. It's a kind of brain imaging that is used to differentiate different, to diagnose or investigate different neurological conditions. And its significance in psychiatry is basically in such conditions in which we have strong possibility of neurological diagnosis, or we have strong suspicion of any organic cause in which we can get in our history, for example head injury, stroke history, epilepsy, or brain trauma, and CNS infections. And basically, if we have strong suspicion of neurological conditions, then we would go for MRI. And if we have any significant history of the symptoms which I have just given, then we would like to go for MRI scan. And it also used to for research purposes and for follow up for the treatment, response to treatment भी देखा जा सकता है इससे. Good. Okay. Doctor, now I have a patient who is a child of age of 6 years, and he presented to me with the symptoms of inability to speech, and there was some movements on the left arm of the body. And I was suspecting to differentiate him from developmental disability or some other cause. And he presented with mostly behavior symptoms. So he was aggressive, he was violent, he was not communicating to the family, he was not listening to them, he was very defined. Do you think MRI is indicated in this kind of, again, pediatric population? And if yes, then what do you think we are looking for in MRI in these people? Patient age is 6 years, and 6 साल का the बच्चा है, जी MRI, again, aggressive behavior, oppositional defiance behavior से present किया है, कुछ जी left sided बाजू में trembling है, और उसकी फैमिली का वो कहना नहीं मानता. वो मुझे मेरे पास एज साइकाइट्रिस्ट वो लेकर आए हैं. मुझे सस्पेशन है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का. डू यू थिंक MRI is indicated? And if I get the MRI, what is the possibility I will be able to find something in MRI in this situation? Sir, MRI would be indicated in this condition as patient is also having some numb sensations in arm. जो अभी Trembling बताया. of the left arm. Trembling of the left arm. So, and also the patient is having behavioral symptoms, and which could be the result of neurodevelopmental disorders in childhood. That is, for example, autism can present with behavioral symptoms, and ADHD can also present with aggression and behavioral symptoms in children. So, autism spectrum disorders have can be benefited from early detailed detection and analysis
which MRI can provide. And Usually autism में MRI में कोई finding आती है? Autism MRI में कोई finding आती है? No. Usually nahin, right? Most of the patients who are suffering from autism spectrum disorder, it's not necessary that they will have a positive finding in MRI. So in this situation, what I'm expecting, if I consider the differential diagnosis of autism, no finding. Considering the differential diagnosis of ADHD, probably no finding. What else? Epilepsy, temporal lobe epilepsy. Okay. If it is a temporal lobe epilepsy, what findings will be there in MRI? Okay, let me change the question. If this child is suffering from a tumor, which is common at the age of 6 to 10, what kind of the tumor it is and what are the findings in MRI? मुश्किल है? ब्रेन ट्यूमर जी हाँ, मैंने इसलिए पहले भेज दिया था, इससे रिलेटेड पढ़ के आना. So, a 6-year-old boy presenting with left-sided trembling and behavioral problems. You have assessed the child, you are considering a differential diagnosis, you sign up for an MRI brain. What finding you are expecting if there is a tumor and what is the tumor at this age, which is common in this age? सोच लो. नहीं सोच लो. कोई ट्यूमर जिसका जो आपको लगता है बच्चों में कॉमन है. और उसमें क्या फाइंडिंग आएगी? Any name of the tumor? Anything? 5 ट्यूमर्स ब्रेन में बच्चों में कॉमनली हो सकते हैं. 1. एस्ट्रोसाइटोमा. 2. ब्रेनस्टेम ग्लायोमा. 3. oligodendroglioma. 4. ependymoma. 5. embryonal tumors. Any of these tumors can be identified in MRI. Now coming back, MRI में आपको मैंने जो भेजा था उसमें अगर हम फ्लूइड, ये जो ट्यूमर्स, जितने भी ट्यूमर्स हैं इसकी बात करें तो डिफ्यूजन वेटेड इमेज करवाते हैं. If we are suspecting a tumor in the child, and these are the tumors that I have named as well, and I want to go for DWI, diffusion weighted image. Then what are your findings? Diffusion weighted image. On diffusion weighted image, edema will appear bright. Right. So हमें
सेरिब्रम में या ब्रेन स्टेम में या किसी और जगह पे एडीमा नजर आएगा और एडीमा ब्राइट कलर का होगा और उसकी वजह से हम असेस करेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है और मजीद उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, राइट जी। अब सिंपल क्वेश्चन, एक एमआरआई इमेज देख लें, है मैंने भेजा था सीटी भेजा था, एमआरआई नहीं भेजा था एमआरआई नहीं भेजा था। नहीं सर। ओके, एमआरआई की फिल्म हम निकाल लेते हैं कोई भी नेट से, ठीक है, और मैं आपको वो दिखाता हूं और आप मुझे MRIBRAIN, ओके, मुझे आपने एमआरआई ब्रेन की इमेज को रीड करके देना है। ओके, ये मैं आपको इमेज दिखा देता हूं और आप इसको रीड कर दें। ओके, कम ऑन। ओके, ये इमेज आ गया, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्टार्ट शेयरिंग। ओके, कैन यू सी दिस इमेज? नजर आ रहा है? जी। ओके, जी। अब इसको रीड कर दो। उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे जो मैंने आपको भेजी थी, यू जस्ट रीड दिस एमआरआई, व्हाट विल यू से? Okay. This is an image of MRI brain. Usually name and age is written on the film. इसमें नहीं हो रही. This is an image of brain MRI of XYZ patient, 20 or 30 years old, and this is the T2 weighted image of MRI because the CSF in the ventricles appears bright white, and the bone or the cartilage appears black. So, So is there any abnormality here? Why these areas are white? These Bone white. the ventricles have CSF. That's why they are. Lateral ventricle किधर है? Third ventricle किधर है? सर ये बिल्कुल सेंटर में नहीं पता चल रहा। ओके, ये थोड़ा सा अगेन इसको पढ़ लेना, ये इमेज इसी तरह पड़ा हुआ होगा, ठीक है, but they will ask you to read it and you have to differentiate all the structures in it, सिर्फ ये नहीं कह देना। so इसमें आपने कहना ये कि this is the MRI brain image, it is T1 and T2 weighted image because the ventricles and the liquids are appearing as white. The fluid is appearing as white and the bone is also appearing as the white. So I can see the various channels where the fluid is flowing. The gray matter is very much visible as dark area. Light gray is the white matter, and the dark gray is the gray matter. Brain as such, I could not see any abnormality. The sulci, the gyri, and the ventricles seems to be flowing appropriately. There is no bony problem in the MRI as well. So I will say this is a normal brain MRI. And when they ask the question, where is the third and lateral ventricle, you have to point out that this is the lateral ventricle and this is the third ventricles and this is the, again, वो कौन सा वो होता है, sinus, sagittal, और साइड पे कौन सा आता है? सो वो आपको फिर डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी।
मजीद पढ़ो। ठीक है, सल जो काय मैंने दिया गायराए। था उसको सिग्निफिकेंट नहीं पढ़ा। ओके, नेक्स्ट पर्सन, हु इज द नेक्स्ट वन? सेकंड स्टेशन, हु विल डू इट? बरकत, आपने कहा था आप स्पीच करेंगे। आर यू देयर? म्यूटेड। सर स्पीच असेसमेंट सर। स्पीच I have असेसमेंट taken speech. आपने करनी है ना, Yes, स्पीच sir. असेसमेंट? Yes, sir. ओके, पूछूं सवाल? Yes, sir. I am the father of a girl. She is 9 years old and she is having some difficulty in speech. You as a psychiatrist would like to talk to me, and I will ask you the questions and you will respond to those questions and explain them. Clear? Okay. Clear. Okay. Now, Barkat, Sir, your voice is not clear, sir. I am not seeing only the scene. I am not seeing there. Your picture is also off, sir. पिक्चर किस चीज की? सर आपकी जो है ना बैकग्राउंड आपका नहीं आ रहा सर, ये इधर ब्लैक हो रहा है। ओ, कोई बात नहीं, आप doesn't make a difference. Don't worry about it. You just have to understand that I am a father of a 9-year-old girl, and this girl is presenting with a speech problem. As a father, I will ask you some questions and you will respond to them. Is it clear? Clear. Okay. Now, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है 9 साल की और इसको ये अच्छी भली थी, बातचीत भी करती थी, लेकिन पिछले कोई 6-8 महीने से इसकी जबान में कुछ मसले आने शुरू हो गए हैं। मैंने 1-2 डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, और किसी ने भी एज सच मेरे लिए कोई एज सच वो नहीं किया कि मैं कहूँ कि जी क्या वजह है कि मेरी बेटी क्यों नहीं बोलने में, उसको क्यों तकलीफ हो रही है। सो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब, पहली चीज तो ये कि मुझे कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं या डॉक्टरी मुआयना करवाना है जिससे मेरी बेटी की स्पीच के मसले को देखा जा सके? Yes, sir. Sir, am I clear to you, sir? सर मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब, क्लियर आ रही है। Yes, sir. Assalamu alaikum. I am Dr. Barkat, a senior PG house officer, and you have asked me this question. That yes, first of all, I would like to see your kid. You have to brought him. ये अब पेशेंट का बाप है तो उर्दू में बात करें। तो सबसे पहले तो मैं आपके जो है ना जो आपका बेटा है उसका मैं फिजिकली मुआयना करना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ उसके जो है ना, उसके बाद फिर जो हम ना किसी कुछ टेस्टें होंगी वो भी करवानी होगी, लाइक कुछ खून की टेस्टें हैं, ब्रेन का एक्सरे है। तो बहरहाल ये है कि आप जो है ना उनको ले आएँ इधर, आप उनके साथ आएँ ताकि मैं उनसे पूछ लूँ। ओके डॉक्टर साहब, इसमें जब बच्ची मेरी 9 साल की बच्ची है, बोलना में इसको तकलीफ हो रही है, आपके ख्याल में इसके बोलने की तकलीफ की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं? अच्छा, ये सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई इसको आर्टिकुलेशन का स्पीच में इसको दिक्कत हो रही है, या वो आवाज़ नहीं निकाल रही, या वो हमारी स्पीच नहीं समझ रही है आपकी, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो काफ़ी वजूहत हो सकती हैं उसको भी हमें देखना पड़ेगा, जैसे कि जो है ना बीमारियाँ हैं जिसको कहते हैं मैस्टीनिया ग्रेव्स, पट्ठों की बीमारी होती है, स्ट्रोक होता है, एक डिजीज़ होती है, या डेवलपमेंटल जो है ना बचपन से ही जो है ना काफ़ी बच्चों को जो इस किस्म की प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें उसको देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ठीक है, आपने मुआयना करना है, आप जरूर कीजिए। मुझे एक डॉक्टर साहब ने, ईएनटी के डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसका जो जबान है वो नीचे जिल्द के साथ लगी हुई है। इसको डॉक्टर साहब आप अपनी जबान में क्या बोलते हैं?
हम अपनी ज़बान को टंग टाई कहते हैं, ठीक है, ये भी बड़ी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने तो आपको डॉक्टर कहा था साहब ना कि इसका इसको आप क्या कहें। इलाज होता है? तो टंग टाई के लिए वैसे हमारी साइकेट्री जो है ये है सर्जिकल प्रोसीजर है, ये ऑपरेशनल डॉक्टर जो है ना वो बेहतर तरीके से उसको कर सकता है और समझ सकता है। लेकिन अगर आप उसको यहाँ ले आते और इसकी टांग का अगर मुआयना करता, तो अगर ये टंग टाई जो है ना, ये जो जमी हुई उधर जो है ना छिलका है उनके टंग के नीचे, तो अगर इसको मैं देखता तो मैं आपको ये सजेशन देता कि भाई आप सर्जन के पास जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मुझे एक डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था कि इसको, जो इसको बीमारी है, इसको हम जी डिसआर्थरिया बोलते हैं। ये डिसआर्थरिया जी क्या जी। होता है और इसमें क्या आपको, आप कैसे उसको देखेंगे? जनाब ये है कि डिसआर्थिया जो है ना, अगर वो जब बच्चा जब बोलता है तो उसको बोलने में उसको तकलीफ होती है। इसमें जो है ना ये हमारे जैसे आपने कहा कि इसकी ज़ुबान है, और ज़ुबान जब आवाज़ बच्चा निकालता है तो सिर्फ ज़ुबान का काम नहीं है, उसके जो है ना पट्टे भी होते हैं, मुंह के पट्टे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो है ना उसको दिक्कत होती है जब वो बच्चा बोलता है, तो उसको स्पीच जो उसकी आवाज़ें में अगर होती है उसको कंबाइन करने में, उसको इकट्ठे करने में उसको दिक्कत होती है। तो उसमें जो है ना वो जैसे कि हम उसको अगर कहेंगे टेस्ट करेंगे कि भाई आप कहेंगे कुछ तनतनिया या पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसमें थोड़ा जो है ना आर्टिकुलेशन में उसको सही उसको नहीं बोल पाएगा। तो अगर मेरा क्योंकि बच्चा आर्टिकुलेशन पाकिस्तान जिंदाबाद बोल ले तो उसको डिसआर्थरिया जी नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है ना, क्योंकि इस करने से अगर और मुख्तलिफ किस्म के आवाज़ होते हैं, टंग ट्विस्टर होते हैं, जिसमें बंदे की जो है ना टंग जो ज़ुबान जो है वो उसको हम ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं, इसको कहते हैं कि भाई अब लू ला इस किस्म की मुख्तलिफ आवाज़ें उसको कहते हैं कि भाई वो निकाले। अगर वो उसमें दिक्कत उसको होती है तो उसको हम आर्टिकुलेशन यानी डिसआर्थिया कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने मुआयना करना है उसमें जुबान की तो बात की है आपने, क्या जुबान के अंदर मुझे नाक कान गले वाले डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए और देखिए क्यों दिखाना ज़ुबान चाहिए? ना, यस, क्योंकि इसमें जो है ना ये जो स्पीच है जो आपने कहा कि बोलने में दिक्कत होती है, तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि इसमें जो है ना उसके पट्टे होते हैं मुंह के अंदर जो है ना, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, या नाक के अंदर जो है इसका जो कनेक्शन है नाक के साथ, इसको ऑस्ट्रिचिन ट्यूब हम अपनी ज़बान में कहते हैं। तो वहाँ भी गिल्टी भी अगर होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो इस किस्म की डिस्फोनिया या उसको नाक के जरिए जो आवाज़ जो है ना, जैसे जानवर आवाज़ निकालते हैं नाक से, इस किस्म की आवाज़ें आ सकती है। तो हम इसको भी देखना पड़ेगा फिर। हाँ, आप जो है ना ENT वाले को भी हम दिखाएंगे। और डॉक्टर साहब, ये एक मुझे किसी ने कहा था जी कि आप, हो सकता है आपकी आपकी बेटी को डिसलेक्सिया हो। ये डिसलेक्सिया जी। क्या बीमारी होती है? अच्छा जनाब, ये डिसलेक्सिया जो है ना, अगर जो वो यानी कि अगर नहीं पढ़ सकती, अगर उसको हम कहते हैं कि भाई आप कोई पैराग्राफ उसको देते हैं, भाई ये अखबार है या ये किताब चाहे उसमें कुछ लिखा हुआ है, बेटा आप पढ़ के मुझे सुनाए, तो उसको वो नहीं पढ़ सकती है, उसको दिक्कत होती है पढ़ने में, वो उसको आपको समझा नहीं सकेगी। अगर आप उसको कहेंगे कि भाई ये आप पढ़ के मुझे बताएं ये क्या लिखा हुआ है, तो इसमें जो डिफिकल्टी होती है पढ़ने में। मुझे एक डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि आपकी बच्ची को शायद फालिज हुआ। वो आपकी बच्ची जी जब पैदा हुई तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई दिमाग को शायद कम गई, जिसकी वजह से उसको फालिज हो गया। क्या फालिज में बच्ची की बोलचाल में, इस उम्र की बच्ची के बोलचाल में इफेक्ट आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है बिल्कुल, जिसको हम कहते सो हैं भाई पल्पल पाल्सी। उसको मैं ठीक है कैसे ना। देखूंगा या किसको दिखाऊं कि वो मुझे बताए कि हाँ मेरी बेटी को फालिज नहीं हुआ और उसकी वजह से ये मसले नहीं हुए? जनाब ये है कि हम भी इसको देखते हैं, लेकिन ये जो तकरीबन जो सारी तफसील आपको जो बता सकता है, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट जो है ना, वो हमारे पास न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल है, वहाँ आप जाके उनको जो है ना वो न्यूरोलॉजिस्ट इसको जो है ना बेहतर तरीके से समझ सकता है। और जब हम उसको जो है ना उसके अगर नफसियाती पहलू आते हैं, जब कोई ये नफसियाती किस्म के जो है ना प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फिर हम जो है इसको डील करते हैं, वरना ये उनका भी काम है न्यूरोलॉजिस्ट का, हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको भेजेंगे। फिर क्या मैं गलत जगह आ गया? मुझे इस बच्ची को न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। 9 साल की बच्ची है और बोलने में उसको दिक्कत हो रही है, तो पहले नहीं न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखा दें।
नहीं, ऐसा हतमी तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये जो ना आपको वही मसला है भी बोलने की दिक्कत, उसको जो है ना बुनियादी तौर पे कोई भी डॉक्टर अगर है ना देख सकता है। अगर उनको ये अंदाजा उसका होता है तो भाई ये किसके पास जाना चाहिए इनको, फिर आपको वो गाइड करेगा। आप हमारे पास आए क्योंकि हमें ये देखना है ना, तो हम आपको बराबर तरीके से गाइड कर सकते हैं, और आप यानी कि उधर भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि बच्चे की बोलने में दिक्कत होती है। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उसको देखकर फिर जो है ना आपको गाइड करेगा अकॉर्डिंगली। अगर हमारा केस होगा तो हम उसको डील करेंगे, ठीक है ना। अच्छा डॉक्टर साहब ने मुझे ये भी कहा था कि शायद बच्ची मेरी बात को समझती नहीं, इसलिए वो जवाब नहीं देती। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं और ये क्यों होती है? अच्छा, ये डिस्फेजिया इसको कहते हैं हम अपनी ज़बान में, डिस्फेजिया। एक वो दिमाग की जो अगला हिस्सा जो है ना, उसके जो है साइड पे एक हिस्सा है जिसको ब्रोकास एरिया कहते हैं। ये ब्रोकास एरिया और दूसरी जगह है वो भी हमारी साइड पे होती है जिसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन होता है, जब बच्चा बोलता है तो वो समझ भी पा सकता है। तो हम इस दोनों जो एरिया जो है ना ये भी इसमें मुतासर हो सकती है। इसको हम कहते हैं डिस्फेजिया, यानी वो बात भी नहीं समझ सकता और एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, यानी अपने वो बोल भी नहीं सकता तरीके से और समझ भी नहीं सकता। इसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। तो ये डॉक्टर साहब डिस्फेजिया जो आपने लफ्ज बोला, ये कितने जी किस्म का होता है? डिस्फेजिया जनाब ये होता है कि ये दो किस्म का होता है। एक ये रिसेप्टिव डिस्फेजिया होता है, दूसरा होता है एक्सप्रेसिव फेजिया डिस्फेजिया। तो ये एक्सप्रेसिव एफेजिया और रिसेप्टिव एफेजिया में क्या फर्क है? एक्सप्रेस पे जो है ना ये अपना जो मैंने आपको पहले बताया था कि दिमाग का जो अगला हिस्सा जिसको हम ब्रोकास एरिया कहते हैं, उसमें कुछ होती है, नुक्स होता है, तो फिर हम उसको ब्रोकास कहते हैं। क्योंकि स्पीच प्रोडक्शन जो है ना, स्पीच वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता, ठीक है ना। जहाँ तक ताल्लुक है रिसेप्टिव का, इसका रिसेप्टिव मकसद ये है कि वो बच्चा जो यानी को उस बातचीत को नहीं समझ सकता, तो लिखी हुई बात वो आपसे ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ जो अल्फाज हैं वो उसको समझ नहीं पा सकता, इसलिए उसको हम रिसिप्ट यानी डिस्फेजिया कहते हैं। ये दोनों का आपस में बड़ा ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी जो 9 साल की है ना, इसको कभी कभी ऐसा होता है जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और वो लगता है जैसे उसका सांस कहीं रुक गया। तो मुझे किसी डॉक्टर साहब ने कहा कि जी ये सांस के डॉक्टर का मसला भी हो सकता है। आपका क्या हाल है इसको? अगर उस बेटी का कभी कभी सांस रुक जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है और बोलने में तकलीफ जो है वो आती है और ठीक हो जाती है, आती है और ठीक हो जाती है, तो ये बीमारी कौन सी हो सकती है? अच्छा, ये इसमें ये हम मुमकिनात में पॉसिबिलिटीज में हम शामिल कर सकते हैं, जैसे कि माइस्टीना ग्रेविस हो, या आपने कहा था कि भाई ये फालिज की जो ना बल्बल पॉलिसी मैंने पहले अर्ज किया था कि इसमें भी ये जो हमारी जो है ना ये ओरोफेरिंक्स जो है ना, या मुंह की जो पट्टे होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर सिकुड़ जाते हैं या तो उसमें भी जो है ना सांस लेने में तकलीफ होती है, बच्चा बिल्कुल जो है ना सांस में दिक्कत महसूस कर सकता है। माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर साहब? अच्छा, माइस्टीना ग्रेविस में ये है कि एक केमिकल होता है एसिटाइल कोलिन जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। उसकी जो है ना ज़्यादा यानी उसको वो उनकी बढ़ जाती है केमिकल एसिटाइल कोलिन, उसको हम कम करने के लिए दवाई हमारे पास होती है, ठीक है। एल डोपा लीवोडोपा ये हम को देते हैं। सो माइस्थीनिया ग्रेविस में आप लीवोडोपा देते हैं? और सारी सारी मैं भूल गया, आई एम सॉरी। हाँ, ये कुछ है ना ये, शाबाश, कोई नहीं। अगर गलती हो गई, बैक फुट पे आके फिर वापस फ्रंट फुट पे जाएं, बोलें। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या दवाई देते हैं? में हेड्रोफोनियम, आई एम और सॉरी, हाँ, हेड्रोफोनियम और आई डोंट नो राइट नाउ। I फाइजोस्टिग्मीन। Pyridostigmine, neostigmine. Yes, sir. ओके, I sir forgot it. Yes. ओके, गुड, ओके। आखिरी Sir. सवाल मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब Sir. कि
क्या बच्चों में राशे की तकलीफ हो सकती है? राशि की सर, राशि इसका थोड़ा बताएं, मुझे कुछ और बताएं, वजाहत करें इसकी। मतलब क्या मेरी बेटी को राशा की तकलीफ हो सकती है, पार्किंसनिज्म हो सकता है? ये भी हम इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटीज है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि माइस्थीनिया ग्रेविस है या स्ट्रोक है या डिमेंशिया है या पार्किंसन डिजीज है, ये भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं। ये भी एक जो है ना हमारी पॉसिबिलिटीज में है, ये भी हम अपने ध्यान में रखेंगे। वो मैंने आपको पहले बताया ये। ओके, अब इसमें बगैर एक चीज का ख्याल रखें कि जब इस किस्म का ऑस्किस्टेशन आपके पास होगा कि स्पीच की असेसमेंट करनी है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक, कोई पेशेंट बैठा हुआ है जिसको आपने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस करके दिखानी है कि आपने क्या क्या उससे स्पीच की असेसमेंट में करना है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि जैसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इस तरह से डिस्फेजिया या एफेजिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे, और उसमें ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज पे भी आप जा सकते हैं। पार्किंसनिज्म की आजकल एक नई दवाई आई है मार्केट में। डॉक्टर साहब, मुझे किसी ने कहा था जी कि वो मैं शुरू करा दूं बच्ची को, तो आपका क्या ख्याल है, वो दवाई कौन सी है, उसका क्या नाम है, और वो उसको देने से मेरी बच्ची में क्या बेहतरी आ सकती है? सर एक तो सर हम उसमें जो है ना पार्किंसन में, एंटी पार्किंसन में, जैसे मैंने कहा लीवोडोपाइल लिखवा। दूसरी सर आपने ICD-11 भेजा था, उसमें से लिखा हुआ था, मुझे अभी नाम मैं भूल गया हूँ। लेट मी सर रिकॉल, लेट मी एक्सरसाइज दैट, लेट मी रिकॉल, वो तो लिखा हुआ है, अभी नई लेटेस्ट आई है। So there are 3 medications launched for Parkinsonism, and you should know all 3 of them, the dosage and the possibility of writing it. उसमें से 2 पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है? So ये FCPS लेवल पे we expect you to know that. सर बच्चों में हो सकता है, इसका क्या आंसर है सर? Well, that is a separate question. वो तो फिर डिस्कशन में बाद में देखेंगे, लेकिन आपको दवाइयों के नाम पता होने चाहिए, उनकी डोजेज पता होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि टेंटेटिव साइड इफेक्ट उसके क्या हो सकते हैं। सो नई एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं, उनके नाम वगैरह आपको पता होना चाहिए। उनमें से अगेन आई वोंट नेम देम बिकॉज अदरवाइज फिर कंफ्यूजन होगी, बट इस सारे को इस तरह से असेस करना है, ठीक है? ओके, गुड। हु इज द नेक्स्ट वन? कौन आगे, कौन करेगा? Sir, I am ready for the replying the questions after CT scan, sir. Dr. Sorry, Dolat is here, sir. दोबारा बोलो। I am Dr. Dolat over here, and I am ready for the answering the questions after CT scan. गुड। तो दौलत राम, कौन सा करना है, मूवमेंट डिसऑर्डर या CT स्कैन इंटरप्रिटेशन? CT scan, sir, interpretation. डन। तैयार हो? जी सर। जल्दी ना डालना, Yes, thank you, sir. आराम से। अच्छा, तुम सब लोगों में एक मसला जो होता है ना, वो जल्दबाजी पड़ जाती है। जल्दबाजी नहीं करनी, सुकून से करना है। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द CT स्कैन, ठीक है? ये ग्रुप में CT स्कैन की तस्वीर तो है ना अवेलेबल व्हाट्सएप ग्रुप में? दौलतराम, ये देखी थी आपने? नहीं सर, we have received the topic of Lesch-Nyhan syndrome on the WhatsApp group. हाँ, That we have received nothing for the preparation of these topics, sir. Currently, now we are listening. नहीं, मैंने सारे भिजवाए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, और मैंने 4 दिन पहले इसलिए भिजवा दिए थे बिकॉज आई थॉट कि यू पीपल शुड बी एबल टू लुक एट देम, ताकि आप लोगों को इस वक्त कोई मसला ना हो। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप तैयार होके आते हैं ना कि क्या मैं पूछूंगा, तो फिर बेहतर रिस्पॉन्सेज एक्सपेक्टेड होते हैं। सो थोड़ा सा ग्रुप में ना पहले एक दफ़ा देख लिया करो कि मैंने क्या भेजा है। मैंने एक्चुअली CT स्कैन की फिल्में और हाउ टू रीड अ CT स्कैन दोनों चीज़ें भिजवाई थी ग्रुप में। और मैं एक सेकंड, मैं आपको ये, अगर मुझे निकल आता है तो मैं ये शेयर भी कर देता हूँ।
OSCE, CT scan, ICD 11. Let me see, कहाँ चला गया? बहुत ऊपर चला गया. MRI, CT interpretation. Okay. Let's do this. Okay. Sorry दौलत, ये टाइम लग रहा है, but ओके. ये फिल्में मैं स्क्रीन शेयर करूँ. ओके बलराम, ये तस्वीरें मैंने भेजी थी, ठीक है, सीटी स्कैन की इंटरप्रिटेशन के लिए. नाउ आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन एंड देन वी विल कम टू दीज पिक्चर्स एज वेल लेटर ऑन. सो फर्स्ट आई विल आस्क यू द क्वेश्चन. ओके, I am a PG resident of psychiatry and you are the consultant psychiatrist, and I would like you to teach me the CT scan, and again I will ask you some question and you kindly respond to those questions, right? ये सिनेरियो है. तो मैं जूनियर हूँ आपका, आप मुझे पढ़ा रहे हैं जैसे MRI में हमने किया था. इसी किस्म के आगे पीछे मिलती जुलती स्टेटमेंट्स आ जाती हैं. ओके, the first question, Dr. Saab, I wanted to know that when we are doing the CT scan, is it a radiological image or is it something else? Sir, this is computerized tomography. Definitely, it's a radiological image and related with the imaging like the X-rays. But in this, the higher doses of the radiations are given to achieve the desired targets. When I look at the CT scan film, like this one, right, I am looking from where? This image is from which side? Sir, this is a CT scan brain and showing the axial section. And now currently I am unable to see that CT scan image. So, Dr. I just wanted to, I was curious, if I'm looking at this image, ये आपने कहा जी axial section है. I understand axial section is a word, technical word for it. But in simple words, can you tell me from where I am looking at the patient's brain? From which side? Sir, we are looking at the brain of a patient from the above, sir, in a transverse section, sir. Okay, cross section. तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहाँ brain नजर आ रहा है. Sir, now I am CT scan, sir, not image है, ये जो image है brain का, क्या ये head end से मैं यहाँ से देख रहा हूँ foot end की तरफ? जी सर. Okay. अगर मैं head end की तरफ से देख रहा हूँ, तो CT, when I see the look at the CT scan, there are various films in it, right? So on first film, there is a small brain area, and in the last film, there is multiple areas of the brain. So head end से मैं bottom की तरफ जा रहा हूँ, so मैं यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा हूँ. Agreed? जी sir. Okay. Now tell me, if this is the situation, then there are certain CT scans where I am seeing from the side. What do we call them? Sir, these are the sagittal sections. Okay. And there are coronal sections in which we see the images from front to back. And now, these what are is the difference between, Dr. Saab, axial, coronal, and sagittal images? You have mentioned three names. Yes, sir. What is the difference between axial, sagittal, and coronal brain sections? Yes, sir. Sir, in sagittal sections, we see the images from the side, and these are at the axial plane, sir. That is section taken at the, I think, 90 degree. Okay. This is axial, this is sagittal. What is coronal?
coronal section is taken from front to back, on which we see the whole. ये एक्सियल हो गया, ये सैजिटल हो गया, और ये front, सामने से पीछे की तरफ कोरोनल हो गया. This is what you are saying? जी जी सर, सामने से पीछे की तरफ कोरोनल हो गया सर, उन which we see the images from front to back. Okay. Usually there are three different types of the scan. So one, we can take it from forward to backward direction, from upward to downward direction, and from side to this direction. Agreed? So we can take images from all sides. What are the three different types of the CT scan machines used for these purposes? Sir, I currently do not know about the CT scan machine, sir. And how? अच्छा, वो आपने वो नहीं ना देखा जो कागज मैंने भेजा था, उसको देख लेते तो आसानी हो जाती. Anyways, okay, let's come to the simple clinical questions then. Yes. If there is a bleed in the CTs and we are doing the CT scan, what findings we are expecting? During bleed, we usually, if the bleeding is recent, then the areas of hemorrhagic sites are the hyperdense ones, sir. And if the bleeding is becoming old, say for example, after a few days, or even if it is there for up to a week and more, then the areas becoming as hypodense. Dr. Saab, it's very difficult for me to understand. So please explain to me what is hyperdense and what is hypodense. Dense is dense, right? Hyperdense जो मैं assume करता हूँ love से, hyperdense means ज्यादा गाढ़ा होगा, hypodense means कम गाढ़ा होगा. So आप ये कह रहे हैं कि अगर fresh bleed होगी तो वो ज्यादा गाढ़ा होगा, और अगर पुरानी bleed होगी तो वो कम गाढ़ा होगा. Yes, sir. The areas will be more brighter in the hyperdense one, and the areas will be looked as the less brighter, or rather the blackish one in the hypodense images, sir. You are absolutely right. I understand that as well. Now, usually, if there is a bleed, what happens to the spaces around the brain? Sir, around the bleeding areas, the area becomes hypodense one, and these showing also these are due to the ischemic infarcts that are around the damaged areas. And usually, if the bleeding is huge one, then it is also going to compress the ventricles, especially if it is lying in front of the brain. Then initially, it will cause or compress the lateral ventricles, and there can be a midline shift to the opposite sides due to heavy bleeding, and there will be edematous areas that will also suppress the clear imaging of the sulci and gyri around the bleeding areas, and there will be loss of adjacent sulci and gyri, and the brain tissue is usually more edematous, and that it is looking like to be the diffuse brain image that will surround the pathological lesions, and it will encircle the whole cranial cavity, sir. How I will be able to differentiate between a tumor and a bleed? Yes, sir. In bleeding, sir, the areas are the depend on the artery of involvement, or the, and then it will be not a homogeneous one, while in the tumors that are established one since few years, the areas look to be involving a specific region of the or pole of the brain. Say, for example, it is there in the frontal lobe or in the temporal lobe, then it will be occupying the whole temporal lobe, and it will be rather looking to be the hyperdense area in the CT scan.
and surrounded by the ischemic areas as the hypodense one, and it will be just causing the symptoms on the other side of the body because of the involvement of the adjacent motor cortex number 4 and 6 one. And sir, it will also compress the adjacent ventricles, and sir, there can be also the midline shift. And okay, let me ask another question, the last question. Now, yes, this is a bleed, right? yes sir, Can you see the image? This is the bleed. yes If sir. I say that this is not a bleed, this is a tumor, how will you differentiate the bleed from the tumor? Sir, usually on history, the tumor has chronic history of the clinical feature, like the patient might complain of severe headache, and he might complain of projectile vomiting, and he might have the issues regarding the hearing if it is affecting the temporal lobe, and it might affect the visual fields of the patient, and patient might complain of the visual problems, and the related sir, motor problems of hemiparesis or the etc. on the other side of the body in the history. While if it is due to bleeding, then the history of the clinical features is acute in onset, usually of few hours or of the days, on which the patient's age is also a very important factor. If the age is more than 30 years or 40 years, then it might be due to hypertensive encephalopathy. The patient might be giving the history of hypertension, and the stroke might be affecting the areas of the brain that will cause symptoms on the other side of the body. So history is also very important in differentiating between the tumor and the bleeding, sir. Okay. Okay, thank you very much, Dr. Saab. Again, to all the three candidates, I will just say two things. One, when I send you the talks or the OSCEs in the group, try to read them and don't restrict yourself. ये भेजने का मकसद जो है CT स्कैन या MRI की इंटरप्रिटेशन या स्पीच की असेसमेंट, ये भेजने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक आउटलाइन आपको मिल जाए, बट इससे रिलेटेड आई एक्सपेक्ट कि FCPS कैंडिडेट इससे रिलेटेड सारे पैरामीटर्स को स्टडी करके आएगा. सो उसको तैयार करके आओ ताकि आपको जो बोल रहे हो उसकी प्रैक्टिस हो जाए. मतलब ये टॉक्स उसकी कराने का मकसद ये कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस उसी वक्त अच्छी होगी जब आप लोग इन स्टेशंस के बारे में अच्छी तरह पढ़ के आए होंगे. क्योंकि जो अननोन स्टेशंस हैं उसमें ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको तैयारी के लिए थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा उसमें दूसरे फॉर्म में जाना पड़ता है, लेकिन मैं पहले इसलिए भेज देता हूँ कि आप उसको पढ़ लें, उससे एसोसिएटेड सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम उसको प्रेजेंट कर लें, देन इट विल बी मोर ईजियर. गुड दौलतराम, कंटिन्यू प्रिपेयरिंग इट. अभी 3 हफ्ते हैं इम्तिहान में. जैसे सायरा से बात हो रही थी कि टेंटेटिवली अभी 20 तारीख के आसपास इम्तिहान की डेट आएगी. सो अभी 3 हफ्ते हैं. सो जितना बोल सकते हैं, जितना इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ही आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है. कम बोलेंगे, कम प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप में रहेंगे, वहाँ लायबल हैं कि आप जाके गलती करेंगे. अगर आप तैयारी करते रहेंगे इसी तरह स्टेशंस की, आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स विल बी ओके. सो थैंक यू दौलतराम, इट वाज गुड. नाउ इज देयर एनी अदर कैंडिडेट? सो एक रह गया डिस्टोनिया को करने वाला, है कोई या बस? मुझे ही दे दें सर, डिस्टोनिया क्या भी सर. नहीं दौलतराम, सारे स्टेशन तुमने नहीं कर दे है? सर अगर दूसरा कोई नहीं कर रहा तो इंशाल्लाह मैं रेडी हूँ सर. अच्छा, anybody wants to do it? डॉक्टर अयूब आज नहीं आए, एक और डॉक्टर साहब भी थे. डॉक्टर साहब सर. हाँ,
डॉक्टर ताज मोहम्मद साहब भी थे सर, डॉक्टर मोहम्मद अयूब के साथ सर। हाँ, वो भी नहीं आए। आई डोंट नो सर। नो प्रॉब्लम। चलो, ये डिस्टोनिया का भी जो है ना, मैंने स्टेशन भेजा था, इसको भी पढ़ लेना। वी हैव अबाउट 10 मिनट्स, so let's start with the question. It is a very simple question, ठीक है? What will you ask from a patient on history and examination of eliciting extrapyramidal side effect? हिस्ट्री पे क्या सवाल पूछने, सिर्फ वो सवाल गिनवा दें आप। Sir, I shall ask about the medications the patient is taking currently, and their names, sir, their doses, and whether the patient is taken an overdose or not, and whether the patient is compliant with the medications or not. And I shall also ask for the comorbid substance use of any type, and I shall about the other medications that might be taken by the patient concurrently. So, say for example, the medication like the thyroxine and other drugs that may also cause the worsening of the extrapyramidal symptoms. So, and I shall ask the other medication मैं regarding. ऐड कर लूं सर? मैं तो ऐड कर लूं? ऐड करना है या करना है स्टेशन? मैं सर कर आपकी रहा हूँ। मर्जी सर, जो। अच्छा, दौलत राम, चलो इनको डॉक्टर साहब को भी बोल लेने दो, 2 मिनट। ओके जी, डॉक्टर साहब बोले। सर, in order to elicit extrapyramidal symptoms, sir, first of all we introduce ourselves, then पेशेंट का तारफ आएगा, एग्जाम सेटअप का आएगा, फिर सर हम उसको जो है ना we will ask him for the history of any medication in the past या recent। उसके बाद सर हम उसको जो है ना ये बताएंगे कि भाई आपके मुंह में कोई जो है ना सर टेंचर वगैरह या कोई डिफिकल्टी है या चिंगम आप जो है ना वो प्रॉब्लम अच्छा नहीं है, अगर इसको है तो उसको आप उसको निकाल दें। उसके बाद सर हम आएंगे स्पेसिफिकली, उसकी पहले सबसे पहले हम इसकी ज़बान देखेंगे। ज़बान में जो है सर रेस्ट की पोजीशन में देखेंगे मैंने इसको सर। सवाल पूछा था कि हिस्ट्री में, एग्जामिनेशन की बात नहीं हो रही, हिस्ट्री में अगर आपने ईपीएस एलिसिट करने हैं किसी पेशेंट में, हिस्ट्री में आप क्या सवाल पूछेंगे? और दौलत राम वो सवाल बता रहे थे, सो वो सवाल आप जवाब बताएं जो हिस्ट्री में हम मरीज से पूछेंगे। अभी एग्जामिनेशन नहीं हो रहा। सो स्टेशन ईपीएस का है, आप स्टेशन पे पहुंचते हैं, आपने वर्बलाइज करना है मरीज से, तो क्या क्या सवाल पूछेंगे बिफोर एग्जामिनेशन? सर उसको हम यूज ऑफ मेडिसिन जो है ना, कोई हिस्ट्री में रिसेंट मेडिकेशन या पास्ट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है। और सर कोई टेंचर का प्रॉब्लम अगर है, कौन सी दवाई ले रहे हैं, कितने अरसे से ले रहे हैं, दवाई रेगुलर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, दवाई में कोई नागा तो नहीं आया, दवाई में रिसेंटली कोई चेंज तो नहीं हुई, और सर कोई डेंचर की हिस्ट्री जो है ना वो भी पूछ सकते हैं हम। डेंचर की हिस्ट्री, कोई डेंटल कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसका भी हम सर पूछ सकते हैं। और सर हम इसको जो है ना डिजीज के बारे में कोमॉर्बिड, फॉर एग्जांपल सर पार्किंसंस है या मूवमेंट डिसऑर्डर्स है, उसकी जो है ना हिस्ट्री में अभी हम पूछ रहे हैं। पेशेंट आया है, ईपीएस का एग्जामिनेशन करना है, आपने हिस्ट्री में मरीज से जब स्टेशन पे एंटर होते हैं आपको नजर आता है कि जी असेस द एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट्स इन दिस पेशेंट। अब आपने मरीज से गुफ्तगू शुरू की, आपने पूछा जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नासिर है, क्या नाम है आपका, आप यहाँ कैसे आए, आपने अभी आजकल में कोई दवाई तो नहीं खा रहे थे, उन अद्वियात में कोई तब्दीली तो नहीं हुई, वो दवाइयाँ आप कितने अरसे से खा रहे हैं, क्या दवाइयाँ आप रेगुलर खाते हैं, आपके मुंह में थूकें तो ज़्यादा नहीं आती, आपको जिस्म में घबराहट और बेचैनी तो नहीं होती, क्या आपके दिल की धड़कन तेज तो नहीं हो जाती, क्या आपके मुंह से बैठे हुए कोई आवाज़ें तो नहीं निकलती, क्या आपके वज़न में कोई कमी या ज़्यादती तो नहीं पिछले कुछ अरसे में, क्या आपको ऐसा लगता है कि सोते हुए आपका जिस्म बेहतर हो जाता है, जागते हुए जिस्म आपका सख्त हो जाता है, क्या आपको जिस्म के पट्टों में, असाब में कोई खिंचाव और तनाव लगता है, क्या आपको लगता है कि किसी चीज़ से ये खिंचाव और तनाव खराब हो जाता है और किसी चीज़ से ये खिंचाव और तनाव बेहतर हो जाता है?
ये सारे वो सवाल हैं जो आपने मरीज से ईपीएस के एग्जामिनेशन से पहले पूछने हैं। गॉट इट? और ये सवाल इसी Yes, sir. सीक्वेंस में याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है। Sir. जब सीक्वेंस खराब Right. होगा गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद आपने एम्स अप्लाई करना है, उससे पहले नहीं। सीधे ही जाते Sir. स्टेशन पे मरीज को एम्स नहीं दे देना, नहीं। पहले आपने Yes. मरीज से सलाम दुआ करके इंट्रोडक्शन करा के ये सारे सवालात पूछने हैं, फिर मरीज को हाथ लगाना। अगर जाते ही ईपीएस के स्टेशन में मरीज को हाथ लगा दोगे, एग्जामिनर फेल कर देगा। Right, sir. पहले ये सवाल पूछो, फिर मरीज को हाथ लगाओ। ठीक है? अब मैं इस हफ्ते में 4 स्टेशंस और भेजूंगा। कोशिश करें, जो ये एकेडमिक्स का ग्रुप है, इसमें जो स्टेशन भेज रहा हूं उनको अच्छी तरह पढ़ें। सायरा, डॉक्टर अयूब, आप, दौलत राम और डॉक्टर साहब सारे इसको पढ़ के तैयारी करके आए और फिर प्रैक्टिस करें। हम अगर बगैर तैयारी के प्रैक्टिस करेंगे, थिंग्स वोंट बी ओके। आप लोग कंफ्यूज होगे और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। अगर अपना स्ट्रेस कम करना है तो जो स्टेशन में भेज रहा हूं इसकी तैयारी करो, तैयारी करके प्रेजेंट करो, ताकि थोड़ी सी रीअश्योरेंस जनरेट हो, थोड़ा सा जनरेट हो कि हाँ मैं कुछ करूंगा, कुछ कर लूंगा। ठीक है? अगर आप हाफ हार्टेड अटेम्प्ट करेंगे तो आप तंग पड़ेंगे। तंग नहीं पड़ना। इस वक्त इम्तिहान के करीब तंग नहीं पड़ना। इस वक्त इम्तिहान के नजदीक कॉन्फिडेंट होके चलना है। और कॉन्फिडेंस एक ही तरीके में हो सकता है कि तैयारी करके आओ स्टेशन की, फिर लोगों के सामने प्रेजेंट करो। ठीक है? ठीक है सर। अगले जुमे 4 स्टेशन करें दोबारा? बिल्कुल सर, करूंगा। चलो डन है। आप चारों अगले जुमे को दोबारा आए, उससे पहले मैं 4 स्टेशन भेज दूंगा। इंशाल्लाह फिर तैयारी करेंगे। मुझसे कोई सवाल पूछना है?